So Kamal, if you get disconnected, rejoin with the same username. Then Prachi Mishra, do you have problem? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Okay, so Hare Krishna, we Prabhuji. have My network. 89 here and 85 joined. So we are 3. So 88. Okay, so we have, I think almost everyone has come. So Prabhuji, I wish all the best to all of you, and you try your best and enjoy the quiz. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Yes. Any question? Hare Krishna. Hare Krishna, please. You are conducting the quiz? Yes, Proji. Vedant Sutra Pro is also here. Kahut, you are only sharing, na? Yes, Proji. Okay, fine. I'm here. Okay. Yes. Okay, so should we start, Proji? We have here 83 players. Vedant Sutra Prabhu is there? Yes, Proji. Hare Krishna, I'm here. Project, we can start, huh? Yeah, definitely. Okay. Okay, all the best to everybody. So, wish you all the best. Go ahead, Prabhu. We can start with one Hare Krishna. Okay, so we'll. Hare Krishna Mahamantra, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare. Okay, so now I will mute everyone and then we'll start the quiz. I think everybody is muted. Okay. So first question, why does Krishna appear on earth? भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं? So these are the 4 options. By order of demigods, देवताओं की आज्ञा से, to marry 16,000 wives, 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए, अपनी इच्छा से, या फिर किसी परिस्थिति को सुधारने के लिए. तो आपके पास ये 31 seconds left. तो देखते हैं who gives the correct answer. Okay, so 41 students have given correct answer. By his sweet will. तो भगवान श्री कृष्ण जब भी अवतार लेते हैं तो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं. जैसे हम लोग को फोर्स करके बर्थ लेना पड़ता है, पर भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं. So these are the scores. You can see Anushka Mani, Krishdas. So you have got
you have given the right answer, but there is variation in marks, because those who have answered quickly, they have got more marks, and those who are answered little late, they have got less marks. So the more quickly you answer, the more marks you will get. So, but don't make mistake. First, be ensure that the answer is correct, then you mark the correct answer. So we come to the next question, second question. These demons swallowed Krishna. इन राक्षसों ने भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया. तो आपको बताना है कौन से राक्षस ने भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया. अघासुर, व्योमासुर, केशी, बकासुर. इसमें से कौन से राक्षस ने भगवान को निगल लिया? There are multiple correct. एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं. मल्टी उसमें पर दिया नहीं था प्रभु जी ऑप्शन. ओके, सो दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, अघासुर और बकासुर. ओके, सो 47 स्टूडेंट्स मार्क्ड अघासुर and 32 marked Bakasur. So we'll see the scores. So again Anushka Mani is on the top, but very less difference is there. Sindhu Balapati 1901. Okay, and these are the top 5. Now we go to the next question. Who gave birth to Lord Balram? बलराम जी को किसने जन्म दिया? रोहिणी, रुक्मिणी, क्योंकि यशोदा. बलराम जी ने किसके गर्भ से जन्म लिया? तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 60 सेकंड का समय दिया जा रहा है. The more quickly you answer, the more marks you'll get. So 82 answers have come till now. Okay. तो मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, सभी को पता था. दैट्स वेरी गुड. सो अगेन अनुष्का मनी इज ऑन द टॉप. सिंधु बिलापति सेम पोजीशन. लव त्रिपाठी he has come on the 4th position. So we go to the next question. After stealing the cowherd boys and calves, Brahma returned after. तो अपने ग्वालों के और गायों के अपहरण होने के बाद ब्रह्मा जी कितने समय बाद वापस लौटे? ग्वालों का और गायों का अपहरण करने के बाद ब्रह्मा जी कितने समय बाद वापस लौटे? अपने हिसाब से क्षण भर का समय, उनके जीवन के हिसाब से 2 years अकॉर्डिंग टू हिज, अपने जीवन काल के हिसाब से 2 साल, अपने जीवन काल के हिसाब से 1 साल और अपने जीवन काल के हिसाब से 5 साल. तो ब्रह्मा जी के समय के अनुसार वो कितने समय में वापस लौटे? हमारे समय की बात नहीं रही, ब्रह्मा जी के समय के अनुसार. 80 आंसर हमको मिल चुके हैं. We have got 80 answers. And let's see how many of you answer correctly. So this is from Brahma Mohan Leela. Okay, so many got confused. So 38 have answered correctly. So Brahma ji, according to his time, he returned in a few moments.
इन अ मोमेंट इंटरवल, क्षण भर में वो वापस लौट आए थे ग्वाल वालों को छुपा के। और ज्यादातर लोगों ने इधर भी 34 भी मार्क किया। 1 ईयर अर्थली लाइफ के हिसाब से, हमारे समय के अनुसार वो एक क्षण ब्रह्मा जी का 1 वर्ष के बराबर था। 1 year of earthly planet is 1 moment of Brahma ji. So that was the calculation. So here it was clearly written according to his life duration. So this is the correct answer. Okay. So now we see who is on the top. Anushka Mani, still on the top. Anushka Mani, Sindhu Balapati. Hari Govind is coming. Okay, so we go to the next question. Yes. So after भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद कौन भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए? गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद कौन भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए? कोई नहीं, बृहस्पति, संवर्तक, सुरभि। गोवर्धन लीला समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने कौन आए? तो इसमें बच्चों को समय लग रहा है। अभी तक 76 आंसर आए हैं। नॉट ऑल। यस। तो बहुत ही बच्चों ने मिस किया है। 27, 13, 16 and only 26 have answered correctly. So Surabhi गाय, Surabhi is a name of a cow. तो जब भगवान श्री कृष्ण की ये लीला समाप्त हो गई, इंद्र को अपनी गलती समझ में आई, तो इंद्र सुरभि को आगे रख के भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। Lord Indra came to Lord Krishna to ask forgiveness, with Surabhi along with him. Surabhi was a cow. Surabhi is a heavenly cow. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है, सो इसलिए इंद्र गाय को अपने साथ लाए, सुरभि गाय। Okay, this is a correct answer. So now we see the score. Yes, so many have toppled in this. Okay, now we go to the next question. किस प्रसिद्ध कवि ने परिवार, समाज और मित्रता के सुख को मरुस्थल में एक ड्रॉप के समान, पानी की ड्रॉप के समान कहा है? उन्होंने बताया कि ये जो संसार का सुख है, ये रेगिस्तान में एक पानी की बूंद के बराबर है। सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास, चंडीदास। देखते हैं तो किसने पढ़ा है ध्यान से। ओके, यस, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो विद्यापति इज द करेक्ट आंसर। ओके, so Lakshmi Subha still on the top, very less gap. So we move on to next question. 7th question. ब्रह्मा was born of. ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? भगवान श्री विष्णु से निकले हुए गुलाब के फूल पे, लोटस फ्लावर, भगवान की नाभि से निकले हुए कमल के फूल से, या भगवान के मुख से निकले हुए कमल के फूल से, या सारे ऑप्शन सही? कौन सा सही ऑप्शन है?
77 answer. So I hope it is a easy question. Most of you should answer correctly. फिर भी इतना समय लग रहा है. We have got 80 answers till now. So time is going to pass now. It's over. Okay, so maximum have answered correctly. So we go to the score. Lakshmi Subha is still on the top. Love Tripathi is behind. Pratik Bhateja and Hari Govind. So we go to the next question. Question number 8. भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को किस प्रकार का पंखा से हवा देते हैं जब बलराम जी थके होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी उनके बड़े भाई हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को जब वो थक जाते हैं खेल के तो पंखे से हवा देते हैं. लॉर्ड कृष्णा ही फैन्स हिज एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलराम बाय फैन. सो व्हिच फैन? इट इज मेड अप ऑफ व्हिच थिंग? palm leaves, fig fan, coconut leaves, कदम्ब fan. ताल के पत्तों से बना हुआ पंखा. and fig is like a रुई या कपास से बोलते हैं. कोकोनट नारियल के पत्तों से बना हुआ, और कदम्ब से बना हुआ फैन. 81 answers. So we will see who is given, how many of you have given the correct answer. So many of you have missed 38. Palm and kadam. So palm leaf is a sign of Lord Balram. बलराम जी के झंडे में palm tree बना होता है. बलराम जी जब जाते हैं उनके रथ पे एक झंडा लगा होता है और उसपे palm यानी ताल के वृक्ष का साइन होता है. So this is the one symbol of Lord Balram. Okay. तो ताल वृक्ष के वन में ही भगवान ने धेनुकासुर का वध किया था. ओके, ताल वृक्ष का जो वन था वहीं पे उन्होंने धेनुकासुर का वध किया. So yes, so this is the score. Many of you have gone down. Now we come to the next question. Question number 9. Select false about वसुदेव. इसमें से जो गलत है वसुदेव जी के बारे में उसको आपको चुनना है. जो गलत है, जो सही नहीं है. पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी कश्यप और सूतपा थे. वसुदेव जी उग्रसेन महाराज के पुत्र हैं. वसुदेव जी शूरसेन महाराज के पुत्र हैं और वसुदेव जी की माता का नाम अनक दुंदुभी है. हाँ, थोड़ा सा टफ है. जिसने पढ़ा होगा अच्छे से तो you can answer correctly. So time is up and 72% have answered correctly. Okay, 72 students. He is the son of Maharaj Ugrasen. Yes. So still Lakshmi is maintaining the lead, but margin is not much, only 3 marks difference. So we move on to the 10th question. Lesson from Brahma Vimohan Leela. ब्रह्म विमोहन लीला से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि भगवान श्री कृष्ण केवल शुद्ध भक्ति से समझे जा सकते हैं और जो ग्वाल हैं और जो गाय हैं, वहाँ के बछड़े हैं, वो सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं. भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं या
ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। इन चारों में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो बहुत जल्दी लोगों ने आंसर किया है। So let's see how many of you have answered correctly. Okay, 51, 23 लोगों ने ये ऑप्शन किया, कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो सही है, पर बाकी दोनों ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ओके, so let's see the score. Yes, so here is some change. Pratik Batheja is taken lead now. So 11th question, at what age, किस उम्र में कृष्ण और बलराम को गायों को चराने का मौका दिया गया? तो उस समय भगवान की लीला में ये कस्टम है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे तो उनको पहले वो बछड़े चराते हैं छोटे पे, फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको गायों को चराने का मौका दिया जाता है। ओके, तो किस उम्र में कृष्ण और बलराम को गायों का चार्ज दिया गया था? So we have 10 seconds left. 83 answers have already come. 84. Okay, 50 students, 5 years, and 21 students, 7 years. Okay, that was a little bit close. So Pratik Batheja is still on the top. Question number 12. Lord Krishna said, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पूजा किसके बराबर है? As good as worship of Indra. इंद्र पूजा के बराबर है, शंकर भगवान की पूजा के बराबर है, स्वयं कृष्ण भगवान की पूजा के बराबर है, या ब्रह्मा जी की पूजा के बराबर है? इसकी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। ओके, वर्शिप ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बराबर। तो कितने सही आंसर हैं? Yes, Pratik Batheja still on the top, but difference is very less, only 6 marks difference. 13th question, मल्टी सेलेक्ट, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, हो सकते हैं। One does not develop devotional service for Krishna. भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे नहीं होती है? कैसे नहीं होती? भक्तों का संग करने से, और वेदों के नीति नियमों का पालन करने से, और देवताओं की पूजा करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने से, और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से। इसमें से किससे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो ध्यान से आपको आंसर करना है। One does not develop devotional service of Krishna by which of the following?
ओके, सो ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। 27 लोगों ने चूज किया एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। उन्होंने चूज किया कि भक्तों का संग करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं प्राप्त होती, पर ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भक्तों के संग से प्राप्त होती है। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनका यदि हम संग करते हैं तो हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होती है। सो दैट इज द करेक्ट थिंग। By association of devotees, we develop Krishna consciousness. So next question. So here is the score. So Lakshmi Subha has taken a good lead. 497, 160 marks, around 160 marks lead. 14th question. When Mother Yashoda saw that milk on the stove is boiling, तो जब माता यशोदा ने देखा कि दूध उबल रहा है तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक तरफ रखा और जो अंगीठी थी जहाँ आग जल रही थी वहां गई। वो इतनी बिजी थी भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने में कि उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने नौकरानी को भेजा दूध को देखने के लिए और वो भगवान श्री कृष्ण को लेके और वहां दूध को देखने के लिए गई। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 80 आंसर अभी मिल चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज अ इजी क्वेश्चन, एनी ऑफ यू नो? Yes, so 64 students mark correct answer. Same, no change. So we move on to question number 15. What is the main purpose of a saintly person? एक साधु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जब वो गृहस्थों के घर में जाता है? हाउस होल्डर मतलब गृहस्थ। तो साधु या ब्राह्मण किस लिए गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे या किस लिए जाते हैं? उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनको अध्यात्म ज्ञान देना या उनसे भिक्षा लेना या उनको कर्मकांड के नियम इत्यादि सिखाना या फिर उनको अपना शिष्य बनाना? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किस उद्देश्य से साधु लोग गृहस्थों के घर जाते हैं? ओके, ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना। तो भिक्षा प्राप्त करना एक माध्यम है और मुख्य उद्देश्य होता है उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना। ओके, so no change. Move on to the next question. 16th question. Which of the following, इसमें से कौन सी अलग अलग प्रकार की माएँ हैं जो शास्त्र में वर्णित? टीचर या स्पिरिचुअल मास्टर की पत्नी, पृथ्वी, हमारी स्वयं की माता, या वाइफ ऑफ ब्राह्मण या ब्राह्मण पत्नी। तो एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं इसमें, आप लोगों को ध्यान से चूज करना है। ओके, देयर कैन बी मोर देन वन आंसर करेक्ट। शास्त्र के हिसाब से इसमें कौन कौन सी किन किन लोगों को माँ का दर्जा प्राप्त है? विच आर कंसिडर्ड मदर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स? यस, तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं।
all the 4 options. Okay, so actually सभी में 80-80 होना चाहिए था, बट कुछ लोगों ने कुछ और ऑप्शन, सारे ऑप्शन चूज नहीं किए. तो वी सी व्हाट इज द स्कोर नाउ. उलटफेर होने की संभावना है पर नहीं हुई. हरे कृष्णा प्रभु। एक बच्चा हाथ उठा रहा है, सृष्टि शर्मा. यस. कुछ पूछना चाहते हैं वो, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ. ओके, यस प्लीज. सृष्टि शर्मा, आप अनम्यूट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको. नहीं, हाथ नीचे कर लिया शायद. ठीक है. Okay, so we move on to next question. 17th question. माता यशोदा ने अपने घर में एक ट्यूटर रखा था. ट्यूटर तो सभी लोग जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को जादुई विद्याएं सिखाता था. सही है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स? माता यशोदा ने एक ऐसे व्यक्ति को रखा था, तांत्रिक या ट्यूटर, जो भगवान श्री कृष्ण को जादुई विद्याएं सिखाता था. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बहुत लग रहा है, सोचना पड़ रहा है आप लोगों को. ओनली आंसर्स आर कमिंग ग्रेजुअली, slowly. So it appears false. Okay, so most of you have answered correctly. Same, no change in the rankings. We go to the next question. 18th question. Activities game enacted by Krishna and coward friends. तो भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती थी, क्या क्या वो करते थे. भांडीर वन नाम के जंगल में, वन में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ क्या क्या खेलते थे, क्या क्या करते थे. इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की नकल करना, और राजा और प्रजा का खेल खेलना, और बर्ड, चिड़ियों का खेल खेलना, और ब्लाइंड्स मैन बफ, यानी जो आंख बंद करके पकड़ते हैं, लुक्का छिपी का खेल खेलना. तो एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. सो यू सी केयरफुली. There can be more than one options correct. Okay. So 31, 29, 16. Let's see. So no change. So you move on to 19. It was impossible. माता यशोदा के लिए भगवान श्री कृष्ण को बांधना असंभव था. रस्सियों से बांधना असंभव था, क्योंकि रस्सियों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी. जो भगवान श्री कृष्ण, उनकी कोई सीमा नहीं थी. Nobody, there is no limitation. भगवान श्री कृष्ण बहुत ही तेज दौड़ते थे और माता यशोदा थक गई थी. तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? So you have to answer carefully. बहुत बच्चों ने काफी जल्दी आंसर कर दिया है. 81 आंसर्स we already have. So let's see. Okay, so most of you have answered correctly. The child had no limitations.
करेक्ट आंसर है। तो अभी भी टॉप 3 वही है, एंड लक्ष्मी सुभा तो लगभग 150 अंकों की लीड है इनकी। तो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लॉर्ड कृष्णा इज ऑलवेज गॉड, तो भगवान श्री कृष्ण हर समय भगवान रहते हैं, चाहे वो एक छोटे से शिशु के रूप में हो या बालक के रूप में हो या फिर युवक हो, हमेशा ही भगवान रहते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स में उत्तर देना है। So it's easy question. Let's see who have answered more quickly. They will get more marks. Okay. So maximum of you, most of you have answered correctly. 81, and only one student have answered wrong. So same score, same ranking. 21वां सवाल, इसमें से किसको वृक्षों की माता का दर्जा प्राप्त है? इनमें से किसको वृक्षों की माता का दर्जा प्राप्त है? नदी, चंद्रमा की ज्योति, सूर्य की किरण या ठंडी हवा? तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। तो लेट्स सी। फाइव सेकेंड्स रिमेनिंग। ओके, 54। तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, 15 लोगों ने सनशाइन। तो सूर्य भी आवश्यक होता है पेड़ों के लिए, सूर्य की किरण, बट शास्त्रों के हिसाब से नदी को पेड़ों की जननी बताया गया है, क्योंकि ज्यादातर नदी के तट पे हम देखते हैं कि वृक्षों का जंगल होता था नदियों के तट पे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है यमुना तीर वनचारी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर जो वन है उसमें वो हमेशा विचरण करते हैं अपने दोस्तों के साथ। यमुना तीर वनचारी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दीज आर द स्कोर्स। अभी भी ये 3 लोग टॉप पर हैं। 22वां सवाल, ब्रजवासियों का मुख्य कार्य क्या था? ब्रजवासियों का मुख्य कार्य क्या था? धर्म के लिए युद्ध लड़ना, गायों की रक्षा करना, वैदिक यज्ञ क्रियाएं करना, और सेलिंग गुड्स, और जो भी कुछ सामान है उनको बेचना। मुख्य कार्य ब्रजवासियों का क्या था? Okay, 75 have answered correctly. Protection of cows. तो ये था मुख्य प्रोमिनेंट प्रोफेशन ऑफ ब्रजवासी, गायों की रक्षा करना।
हरे कृष्ण रुदि, 1 मिनट के लिए थोड़ा एक बार ब्रेक. Yes. Some students have raised their hands. I would suggest ask your questions in the chat window. Ask them to me. I will answer you. I'll try to answer your questions. Thank you. Hare Krishna. So you can ask your question to in the name is Vipul Arora Prabhu and co-host. Okay, so all of you can ask your questions to Prabhuji. So we move on to the next question. 23वां सवाल. भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में स्थित हैं. भगवान श्री कृष्ण का जो एक्सपेंशन है, उनके जो विस्तार हैं, वो सभी के हृदय में स्थित हैं. किस रूप में स्थित हैं? सुपर सोल, परमात्मा के रूप में, ब्रह्मन के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, या इन तीनों ही रूपों में. तो किस रूप में भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में, सभी के हृदय में स्थित हैं? ओके, 57, 21 लोगों ने कहा ऑल ऑफ द अबव, जो कि सही नहीं है. अर्च विग्रह किसको बोलते हैं? अर्च विग्रह जो मंदिर में भगवान के विग्रह होते हैं, भगवान की जो मूर्ति होती है, उनको अर्च विग्रह बोलते हैं. तो जिसका अर्थ होता है कि अर्च विग्रह भी भगवान से अलग नहीं है, वो जो भगवान ही है स्वयं. जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है, वो स्वयं भगवान, उस रूप में भगवान ने अवतार लिया है. इसलिए हम लोग मूर्ति नहीं बोलते. भगवान के जो भक्त होते हैं, वो लोग अर्च विग्रह बोलते हैं. तो विग्रह का अर्थ होता है भगवान का एक रूप, और अर्च का मतलब होता है जिनकी पूजा की जाए, अर्चना की जाए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दीज आर द स्कोर्स. तो हमारे टॉप 3 वही बने हुए हैं, लक्ष्मी, प्रतीक एंड हरि गोविंद. नल, कुबेर और मणि ग्रीव ने कौन से वृक्षों का रूप लिया? उनको कौन से वृक्षों का रूप लेना पड़ा? नल, कुबेर और मणि ग्रीव को कौन से वृक्षों का रूप लेना पड़ा? बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष, या अर्जुन का वृक्ष? What is the name of the tree? ओके, 59. ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया. तो सेम रैंकिंग. तो तीनों ही कंपटीटर्स इक्वल लेवल के हैं. कृष्णा किल्ड द डीमन नरकासुर आल्सो नोन एज. तो नरकासुर का एक और नाम क्या है? भौमासुर, अग्निसुर, अघासुर, या भीमासुर? नरकासुर का एक और नाम क्या है?
तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया भौमासुर। तो क्योंकि वो भूमि के पुत्र थे इसलिए उनको भौमासुर भी बोला जाता है, नरकासुर। भूमि देवी के पुत्र होने के कारण इज आल्सो नोन एज भौमासुर। तो 26वां सवाल, लॉर्ड्स बॉडी डज नॉट ग्रो ओल्ड ऑल्दो इज द ओल्डेस्ट पर्सन। तो भगवान सबसे पहले के व्यक्ति हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, फिर भी वो वृद्ध नहीं होते हैं, उनका शरीर वृद्ध नहीं होता है। सही है या गलत है? दिस इज एन इजी क्वेश्चन। पर अभी भी सारे लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो 58 लोगों ने सही जवाब दिया और 23 लोगों ने गलत जवाब दिया। लॉर्ड्स बॉडी डज नॉट ग्रो ओल्ड ऑल्दो ही इज द ओल्डेस्ट। तो दिस इज ट्रू। भगवान श्री कृष्ण, कभी भी आपने भगवान श्री कृष्ण की को या भगवान श्री राम की पिक्चर वृद्ध रूप में, बूढ़े रूप में नहीं देखी होगी, बिकॉज द लॉर्ड नेवर ग्रो ओल्ड, ही इज ऑलवेज अपीयर्स लाइक अ फ्रेश यूथ। चाहे वो कितने भी उनकी उम्र हो जाए, तभी भी वो एकदम युवा जैसे ही लगते हैं। तो his body does not grow old like our body. Okay? That is the difference. तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है। लव त्रिपाठी has come on 4th position and Lakshmi Subha, still gap is not much. Lakshmi Subha and Pratik Bateja. Cowherd boys did not discuss. तो ग्वाल बालों ने अघासुर वध का जो लीला है उसको एक कितने वर्ष तक डिस्कस नहीं किया, कितने समय तक डिस्कस नहीं किया? अघासुर लीला को जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो ग्वाल बाल वापस गए, लेकिन उन लोगों ने डिस्कस नहीं किया काफी समय तक। तो कितने समय तक डिस्कस नहीं किया? पाँच सेकेंड। ओके, 1 ईयर, 1 साल तक, पृथ्वी के 1 साल तक उन्होंने डिस्कस नहीं किया। कुछ लोगों ने 6 महीने बताया, कुछ लोगों ने 1 महीने बताया, बट करेक्ट आंसर इज 1 ईयर्स। तो सेम। सैक्रिफाइस, यज्ञ किसके प्रसन्नता के लिए किया जाता है? You can skip this question. This is a wrong question. We deleted Okay. it. Please skip Okay, this is a wrong question. So Please. we'll skip this. So the marks will not be counted for this question. Okay. Let's skip. Yeah, So go to we'll next. go to the next question. Sorry for this. So 29, 29वां सवाल, लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के महत्व को कम कर दिया कौन सी फिलॉसफी बोल के? इस फिलॉसफी को बोल के भगवान ने देवताओं के महत्व को कम
कर दिया। कर्म मीमांसा, राज विद्या, भक्ति योग, भगवत गीता। तो नंद बाबा को समझाते समय भगवान ने ये फिलॉसफी बोली थी, तो क्या थी ये फिलॉसफी? कई लोगों ने मिस किया। 34% ने भगवत गीता उत्तर दिया है, पर सही जवाब ये नहीं है। 27 लोगों ने सही जवाब दिया है कर्म मीमांसा फिलॉसफी। तो कर्म मीमांसा फिलॉसफी का अर्थ है यदि हम अपना कर्म अच्छे ढंग से करेंगे तो हमको किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म से हमको अच्छा फल मिलेगा। जिसने अच्छा कर्म किया है उसको अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा कर्म किया है उसको बुरा मिलेगा। तो देवताओं की पूजा करने का क्या फायदा? तो इसको कर्म मीमांसा फिलॉसफी बोलते हैं। और ये भगवान ने नंद महाराज को समझाने के लिए ऐसा बताया था ताकि वो इंद्र की पूजा न करें। So that Lord Krishna, Nand Baba and other Brajvasis do not worship Lord Indra. So therefore Lord Krishna spoke this philosophy that if you do your work, then demigods have to give results. Okay? So ये philosophy partially correct है, पर पूरी तरह से सही नहीं है। पूरी जो absolute philosophy है वो भगवत गीता में भगवान ने बताई है, तो इसलिए ज्यादातर लोग भ्रमित हो गए। बट जो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द आंसर, कर्म मीमांसा फिलॉसफी। इट रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमिगॉड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। गोपियों के अनुसार भगवान की कौन सी चीजों में, कौन सी वस्तु सबसे भाग्यवान है? उनकी बांसुरी सबसे भाग्यवान है, या उनकी वैजयंती माला सबसे भाग्यवान है, या उनका मोर पंख भाग्यवान है जो वो सर पे लगाते हैं, या कौस्तुभ मणि जो उनके छाती पे रहती है वक्ष स्थल पे, वो भाग्यवान है? गोपियों के अनुसार कौन सी वस्तु भगवान की सबसे अधिक भाग्यवान है? ओके, तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया। तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लव त्रिपाठी, कुश त्रिपाठी, दोनों भाई चौथे और पांचवें नंबर पे हैं। 10 से 31। पराशर मुनि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों में से कौन से ऐश्वर्य हैं? The 6 opulences of Lord Krishna is described by sage Parasar include। तो मल्टी सेलेक्ट आंसर है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, एक से अधिक उत्तर करेक्ट हो सकते हैं।
ओके, सो स्ट्रेंथ, बल, बुद्धि, इंटेलिजेंस और फेम. ओके, सो still we have the same order. Question number 32. किस क्रिया के द्वारा सभी वेदों में जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी वेदों में हमको बताया गया है, वो सब उस क्रिया को करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है. ओके, मॉर्निंग योगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, दान करना, तपस्या करना. तो क्या करने से सभी चीजों का फल प्राप्त हो जाता है? तो कौन सा आंसर इसमें सही है? So most of you have answered correctly. Engaging in devotional service of the Lord. तो भगवान की बताए हुए उपदेश के हिसाब से कार्य करने से हमको सभी कार्यों का फल प्राप्त हो जाता है. Okay, no change in the order. Which of the demons were killed by Lord Balram? बलराम जी ने किन असुरों का वध किया? इसमें से किन असुरों का वध बलराम जी ने किया? तो ध्यान से आपको उत्तर देना है. किन किन असुरों का वध बलराम जी ने किया? लंबासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर. दस सेकंड बचे हुए हैं. ओके, लंबासुर, धेनुकासुर. धेनुकासुर केवल 11 लोगों ने उत्तर दिया है. ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भगवान श्री बलराम जी का सिंबल क्या है? ताल, ताल का वृक्ष. तो ताल के वृक्षों के वन में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया था, जो कि गधे के रूप में था. ओके, तो ताल का वृक्ष, और उन्होंने सभी गधों को उठा उठा के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के ताल के वृक्षों पर फेंक दिया, और खूब सारे ताल के फल नीचे गिरने लगे. वो सब फिर भगवान के फ्रेंड्स ने उनको खूब अच्छे से खाया पिया. ताल के वृक्ष में जूस होता है. So in this way, pastime was performed. Okay, so still no changes. विष्णु, विष्णु भगवान के छाती पे कौन सा चिन्ह है? विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर कौन सा चिन्ह है? कमल, श्रीवत्स, कांच मतलब शंख, और डिस्क मतलब चक्र.
Most of you have answered correctly. 57 students have answered correct. And we have the same ranking. वृंदावन में किस प्रकार के कमल के फूल उगते हैं? तो ये थोड़ा सा टफ है, जिसने पढ़ा होगा, जिसको याद होगा वो आंसर कर सकता है। फुलहार या कहलार, कंज उत्पल या कहला, कनुआ या कनर एंड उत्पल, किस प्रकार के कमल के पुष्प हैं? तो यहाँ से थोड़ा रैंकिंग में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। Those who have answered correct, they may lead in this question. Okay, so 35 have answered correctly. Let's see. Okay, so all our toppers have answered correctly. So what kinds of ताल वन में किस प्रकार के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ताल वन में किस प्रकार के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बरगद का वृक्ष, ताल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष। तो आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन। So only 78 have answered. 79. Okay, so palm tree. So correct answer. Yes. So this is same ranking going on. So we move on to the next question. 37. 37वां सवाल. Krishna's advent was especially meant for. भगवान श्री कृष्ण किस कारण से अवतार लिया उन्होंने? भक्तों की रक्षा करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मक्खन चुराने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? किस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया? कृष्णा's advent was specially meant for. किस उद्देश्य से भगवान अवतार लेते हैं? Okay, so most of you answered correctly. Protection of devotees. प्रतीक भतेजा. ओके, यहाँ पे उन्होंने लीड ले ली है. What are the characteristics generally seen in materially opulent men? जो भौतिक रूप से बहुत धनवान होते हैं, उनमें क्या चीज देखा जाता है? इंटॉक्सिकेशन, नशा, जुआ, सेक्स, इसमें लत रहना, ये सोचते हैं कि वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, या फिर वो कभी ईर्ष्या नहीं करते किसी से, या प्रकृति के नियमों से
को नहीं मानते हैं। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? भौतिकवादी व्यक्तियों में इनमें से कौन से गुण अधिक होते हैं? ओके, तो देयर आर 3 करेक्ट ऑप्शंस। और कितने लोगों ने सही किया है? 19। ओके, तो काफी लीड ले लिए प्रतीक भतेजा ने, लगभग 1000 पॉइंट्स। तो सेलेक्ट द थिंग्स व्हिच मदर यशोदा सॉ इन द माउथ ऑफ कृष्ण। जो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा, उनका चुनाव करिए। क्या क्या देखा? माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में क्या क्या देखा? भौतिक प्रकृति, ये पूरा भौतिक संसार, चंद्रमा, तारे, जल, आकाश, सभी देवी देवता, या खुद को? इनमें से क्या क्या माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा? ओके, तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक, ओके, still on top. Question number 40. Inhabitants of Vrindavan rich in material possession because. तो जो वृंदावन के वासी थे वो धनी थे किस कारण से? क्यों वृंदावन के वासी इतने समृद्ध थे? क्या कारण था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाउ वी कैन आल्सो बिकम materially opulent? Many people want to become materially opulent. तो किस कारण से? बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, सिल्क के कपड़ों का व्यापार करते थे, और मिल्क, दूध, दही और घी, इन सब का व्यापार करते थे, या उनको अपने पुरखों से जायदाद जमीन मिली थी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? So it appears to be easy one. I hope all of you have answered correct. Most of you. 77. So okay, Hari Govind first after long time going down, but gap is very less. Then we have lunch. लेते समय कृष्णा appeared as, भगवान किस रूप में प्रकट हुए? एंड द बॉयज अपीयर्ड एज, और उनके जो फ्रेंड्स थे वो किस तरह लग रहे थे? देखने में कैसा लग रहा था? जब भगवान लंच ले रहे थे तो वो कैसे लग रहे थे? उनकी तुलना किससे की गई है? और जो उनके साथी हैं, जो उनके चारों तरफ बैठे थे, उनकी तुलना किससे की गई है? कमल का फूल और उसकी पंखुड़ियां, गुलाब का फूल और भौरे या मधुमक्खियां, और हनी की बोतल या मधुमक्खियां? So what is the correct answer? So let's see how many of you have read properly Krishna book. Okay, 52. 52 have answered correctly. कमल के फूल, क्या बीज का भाग और उसकी पंखुड़ियां?
ओके, हु हैज गॉन आउट? हरि गोविंद। हरि गोविंद ने लग रहा है गलत उत्तर दे दिया इसमें और वो बाहर चले गए हैं। लेट्स सी। व्हाई डेडली थंडरबोल्ट्स फेल ऑन गोवर्धन? गोवर्धन के ऊपर इतनी बिजलियां क्यों पड़ रही थी? अच्छा, व्हेन डेडली थंडरबोल्ट्स फेल ऑन गोवर्धन, जब गोवर्धन के ऊपर बिजलियां गिर रही थी तो क्या हुआ? इट बिगैन टू डिसइंटीग्रेट, गोवर्धन पर्वत टूटने लगा और जितने भी वृक्ष थे और कीचड़ वो सब आसपास गिरने लगा। थर्ड है, ऐसा लग रहा था जैसे सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही हो। और चौथा है, गोवर्धन हिल रहे थे, शेकिंग, गोवर्धन हिल रहे थे। कैसा लग रहा था? तो यहाँ पे So it felt like soft fragrant flowers falling on it. तो हालांकि इंद्र उनके ऊपर थंडरबोल्ट्स, बिजली बरसा रहे थे, बट गोवर्धन इट वाज फीलिंग लाइक कि उनके ऊपर सॉफ्ट फूल फेंके जा रहे हैं। 26 लोगों ने इसमें दिया है गोवर्धन वाज शेकिंग, so but that is not due to thunderbolts. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट। आप हिंदी में बोलिए और थोड़ा तेज बोलिए, बच्चे बोल रहे हैं। पहले हिंदी में बोलिए और थोड़ा तेज बोलिए। ओके। तो जो गोवर्धन जी को बहुत सारी ऑफरिंग दी गई थी, वो किसने खाई? इंद्र ने, कृष्ण ने, बलराम ने या ब्राह्मणों ने? गोवर्धन जी को जो बहुत सारा भोग चढ़ाया गया था वो किसने खाया? इंद्र ने, कृष्ण ने, बलराम ने या ब्राह्मणों ने? ओके, कृष्ण ने। तो सही उत्तर, काफी लोगों का सही जवाब है। And we have the same ranking. Pratik Bhateja 41,000 और ये 39,000, so almost 1500 मार्क्स का गैप है। 44वां सवाल, मदर यशोदा भगवान श्री कृष्ण को किससे बांधने का प्रयास कर रही थी? घर के खंभे से या ओखली से या खंभे से या वृक्ष से? माता यशोदा किससे बांधने का प्रयास कर रही थी? खंभे से, ओखली से, बाहर किसी पोस्ट खंभे से या फिर वृक्ष से? तो आसान सवाल है, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट। Okay, 78 have answered correctly. So we have the same order. Without permission, one cannot. तो किसकी परमिशन के बिना कोई भी किसी को वरदान नहीं दे सकता? किसकी परमिशन, किसकी सहमति के बिना कोई किसी को वरदान नहीं दे सकता? दुर्गा जी की,
परम भगवान की, ब्रह्मा जी की, या शंकर भगवान की? किसकी अनुमति के बिना कोई वरदान नहीं दे सकता किसी को। दस सेकेंड है, 10 seconds स्टिल लेफ्ट। Okay, so most of you have answered correctly. Supreme Personality of Godhead Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही देवी देवता भी हमको कोई वरदान देते हैं, तो कोई चेंज नहीं है ऑर्डर में। तो अगला सवाल है, इसमें से कौन सी चीज तृणावर्त के विषय में सही है? इनमें से कितनी बातें तृणावर्त के इस विषय में सही हैं? वो कंस का सर्वेंट था, वृक्ष से गिरकर मर गया, और भगवान श्री कृष्ण को वो आसमान में ले गया ऊपर तक, और वो उसने एक गधे का रूप धारण किया। तो इनमें से कितनी बातें सही हैं? तो काफी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। He was servant of Krishna. He carried up Krishna in the sky. Okay, so top 5 हमारे वही हैं। Okay, to the cowherd women of वृंदावन। और वृंदावन की जो स्त्रियां थी, उनके सामने पूतना किस रूप में आई? सरस्वती देवी के रूप में, लक्ष्मी देवी के रूप में, अपने हाथ में कमल का फूल लेके, एक राक्षसी के रूप में, बहुत सुंदर राक्षसी के रूप में, या फिर एक पत्नी के रूप में जो अपने पति को खोज रही है? किस रूप में पूतना आई? तो काफी लोगों ने उत्तर दे दिया है। ओके, फिर भी काफी लोग कंफ्यूज हो गए। 52 लोगों ने सही उत्तर दिया, और 15 और 11 लोगों ने लिखा है क्वीन ऑफ डेमंस, राक्षसों की रानी के रूप में आई, और एक पत्नी के रूप में आई जो अपने पति को ढूंढ रही है। ओके, पर ये सही जवाब नहीं था, बट आवर टॉपर्स दे हैव आंसर्ड करेक्टली। सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो गोपियां थी वो संध्या के समय में खुश क्यों हो जाती थी? शाम के समय में गोपियां खुश क्यों हो जाती थी? क्योंकि वो लुक्का छिपी का खेल खेलती थी। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के वापस आने का समय होता था वन से। तीसरा है वो चेस खेलती थी। और चौथा है उनको कोई कार्य करने को नहीं था। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है?
तो कुछ सेकंड बचे हैं। ओके, तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, 79 लोगों ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आने का समय था। ओके, तो प्रतीक बतेजा, काफी लंबी लीड है। अगला सवाल, काउहर्ड, ग्वाल बालों को किसने अपहरण किया? व्योमासुर ने अपहरण किया, तृणाव्रत ने, ब्रह्मा जी ने, धेनुकासुर ने। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ग्वाल बालों का अपहरण किसने किया? व्योमासुर, तृणावर्त, ब्रह्मा जी, धेनुकासुर। ओके, तो 74 लोगों ने तो ये जवाब सही दिया, ब्रह्मा जी का। पर व्योमासुर ने भी ग्वाल बालों का अपहरण किया था। व्योमासुर जब ग्वाल बाल खेल रहे थे तो व्योमासुर भी उनके साथ आके खेलने लगा, ग्वाल बालों का वेश बना के, और वो लोग चोर पुलिस खेल रहे थे। तो व्योमासुर पुलिस के रूप में था, वो सब एक एक करके ग्वाल बालों को पकड़ के ले जाके छुपा देता था। नहीं, भेड़ बकरी का खेल खेल रहे थे, तो ग्वाल बाल भेड़ बकरी बने थे, और व्योमासुर क्या करता था, धीरे धीरे सबको एक एक को ले जाके एक गुफा में छुपा देता था। सो व्योमासुर इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, मेनी ऑफ यू हैव नॉट आंसर्ड दिस, तो देखते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी उलटफेर नहीं हुआ। 50वां सवाल, किस वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया? कौन से वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया? उदय वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश, रघुवंश। चारों में से कौन से वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया? Okay, Chandravansh. So most of you have answered correctly. Okay. So question number 51. 51वां सवाल, इनमें से कौन सी नदियां वृंदावन में बहती हैं? तो आपको उन सभी नदियों को चुनना है जो वृंदावन से बहती हैं। तो ध्यान से चुनना होगा आपको। कावेरी, कालिंदी, सरस्वती, यमुना। कौन सी नदियां वृंदावन से बहती हैं? तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। सो समय समाप्त होने वाला है एंड टाइम इज अप। सो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, यमुना। पर कुछ लोगों ने एक कालिंदी ऑप्शन नहीं चुना,
तो यही इस प्रश्न के माध्यम से यही जानना चाहते थे हम लोग कि आप लोगों को क्या पता है कि यमुना का एक नाम कालिंदी भी है, यमुना जी का दूसरा नाम कालिंदी भी है। ठीक है, तो यमुना जी को कालिंदी भी बोलते हैं। तो दोनों नदियां एक ही हैं, तो कालिंदी भी यमुना है और यमुना भी यमुना है, पर उनका एक नाम कालिंदी है। ठीक है, तो ये आपको पता था कि नहीं, ये जानने के लिए ये प्रश्न किया गया था। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा उलटफेर हुआ है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 52वां सवाल, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का क्या लाभ है? इससे भगवान का संग प्राप्त होता है और सुनने में बहुत ही मधुर लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं लीलाएं। तीसरा ऑप्शन है, हमको अपना जो वास्तविक स्थिति है वो हम पहचान पाते हैं और हृदय से जो भौतिक कल्मश हैं, जो गंदगी है, वो साफ हो जाती है। तो भगवान की लीलाओं को सुनने का क्या लाभ है? तो चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, आपको चुनना है। ओके, तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, तो देखते हैं स्कोर को। और वही प्रतीक भतेजा ने 50,000 का स्कोर प्राप्त कर लिया है। प्रतीक भतेजा के लिए हरि बोल। 50,000 उन्होंने कर लिया है। और 53, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें से गर्ग मुनि के बारे में कौन सी बात सत्य है? वो एक क्षत्रिय थे जिनको ये एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का ज्ञान था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के लिए संस्कार किए थे, यज्ञ संस्कार। वो सूर्य वंश के पुरोहित थे। और चौथा ऑप्शन है, उनको वसुदेव ने गोकुल में भेजा था। चारों में से कितने ऑप्शन सही हैं? कौन कौन से ऑप्शन सही हैं गर्ग मुनि के बारे में? ओके, तो 53 लोगों ने दो ऑप्शन और 20 लोगों ने बताया वसुदेव गोकुल, उनको वसुदेव ने गोकुल में भेजा। ओके, तो अभी भी किसी ने 50,000 नहीं पार किया है। प्रतीक भतेजा 51,000 पे पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन प्राप्त करता है 50,000। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वालों का अपहरण क्यों किया? क्रोध से, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण को टेस्ट करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। और चौथा है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। चारों में से किस कारण से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का अपहरण किया और बछड़ों का अपहरण किया? क्रोध में, भगवान के प्रति प्रेम के कारण, भगवान की परीक्षा लेने के लिए, या कर्तव्य के कारण? ओके, तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया और लगता है काफी लोग 50,000 का आंकड़ा पार कर गए होंगे। ओके, दो केवल लक्ष्मी सुबह। ओके, बाकी लोग अभी भी नीचे हैं।
55, क्वेश्चन नंबर 55। कृष्ण और बलराम को उनकी माता कौन से रंग के कपड़े पहनाती हैं? भगवान श्री कृष्ण हरा, बलराम पीला, भगवान श्री कृष्ण पीला, बलराम को नीला, कृष्ण नीला, बलराम को पीला, या कृष्ण को पीला और बलराम को हरा। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कृष्ण किस रंग का पहनते हैं और बलराम जी को किस रंग का पहनाया जाता है? ओके, तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया। कृष्ण पीले रंग का और बलराम जी नीले रंग का पहनते हैं। तो भगवान राधा रानी का जो कलर है वो सोने के कलर का है, स्वर्ण कलर। तो हल्का पीला कलर होता है, चमक। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और कृष्ण का रंग ब्लू होता है, नीला होता है। इसलिए बलराम जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, हालांकि बड़े भाई हैं, पर वो हमेशा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए वो उनका मन क्योंकि हमेशा भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है, इसलिए वो नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और ओके, तो अभी भी दो ही लोग हैं जो 50,000 के पार हैं। 56वां सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मदर रोहिणी के बारे में जो सही बात है उसका चुनाव करना है। पहला, वो बलराम जी की माता है। दूसरा, वो गोकुल में यशोदा के साथ रह रही थी। तीसरा, वो अनक दुंदुभी की पत्नी है। और चौथा, वो भगवान श्री कृष्ण के जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जन्म का त्योहार होता है, उसमें उपस्थित नहीं थी क्योंकि उनके पति वहां पर नहीं थे। तो इन चारों में से कौन सी बातें माता रोहिणी के बारे में सही है? वो बलराम जी की माता है, गोकुल में यशोदा के साथ रहती थी, अनक दुंदुभी की पत्नी है, और उन्होंने भगवान की जन्म की उत्सव को अटेंड नहीं किया क्योंकि उनके पति वहां नहीं थे। ओके, तो इसमें से 3 सही है और चौथा गलत है, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी प्रेजेंट थी, अच्छे से संवर के, क्योंकि भगवान का वो बर्थडे सेलिब्रेशन था। ओके ओके, तो 4 लोग 50,000 पार कर चुके हैं। कृष्णदास इज रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 57, 57वां सवाल। अघासुर के वध के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष? आसान सवाल है। अघासुर के वध के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष? ओके, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। 7 वर्ष मार्क किया है, पर सही आयु थी 5 वर्ष। सिंधु बिलापति फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गए।
58 58वां सवाल, इसमें से मदर यशोदा ने माता यशोदा ने किसकी शरण ली अपने बालक को बचाने के लिए? कृष्ण को बचाने के लिए किसकी शरण ली माता ने? देवताओं की, भगवान विष्णु के नाम की, और फोर फादर्स यानी पितरों की, अपने पुरखों की, या गायों की? किसकी शरण ली माता यशोदा ने? तो ध्यान से सोच के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ओके, 59 लोगों ने ये दिया है। और तो माता ने भगवान विष्णु के नामों की और गायों की शरण ली। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि भगवान का नाम और गायों का कितना महत्व है। भगवान के नाम का और गायों का कितना महत्व है। तो प्रतीक बतेजा 55,000, सेम ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 59, बच्चों ने ब्रजवासियों को बताया, क्या बताया? कि जिसपे ब्रजवासियों ने विश्वास नहीं किया। तो ये कब हुआ था? चिल्ड्रन टोल्ड ब्रजवासी और कृष्ण पास टाइम बट दे डिड नॉट बिलीव। तो जब भगवान ने कृष्ण के पास टाइम के बारे में बताया बच्चों ने भगवान के बारे में, तो ब्रजवासियों ने कब यकीन नहीं किया? ऐसा कब हुआ था? जब वो एक कार्ट यानी बैलगाड़ी का उन्होंने तोड़ा, जब पूतना को मारा, जब बकासुर को मारा, या जब अर्जुन के जो वृक्ष थे वो गिरे थे? तो किस समय ब्रजवासियों ने जो बच्चों का यकीन नहीं किया, बच्चों ने जब भगवान की लीलाओं को बताया? ओके, तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं। एक, जब वो बैलगाड़ी उन्होंने तोड़ी जब छोटे से बालक के रूप में थे, और अपने पैर के अंगूठे से जब उन्होंने बैलगाड़ी को टच किया तो वो टूट के बिखर गई। तो कुछ बच्चों ने देखा और ब्रजवासियों को बताया, तो ब्रजवासियों ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा इतना छोटा बालक कैसे ये बैलगाड़ी तोड़ सकता है। और दूसरा, जब अर्जुन के पेड़ दोनों गिराए, ओखली बीच में लगा के अर्जुन के पेड़ गिराए, तभी भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा इतना छोटा बालक इतने बड़े पेड़ों को कैसे गिरा सकता है। ओके, सो ये दो समय ब्रजवासियों को यकीन नहीं हुआ। तो हमारे कंटेस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पूतना? पूतना के बारे में कौन सी बात सही है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पिया था इसलिए वो पवित्र हो गई। दूसरा है, उसने गोकुल में एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में प्रवेश किया। तीसरा, वो उग्रसेन की पुत्री थी। और चौथा, भगवान श्री कृष्ण पहले बालक थे जिसको उसने मारने का प्रयास किया। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, या कितने ऑप्शन सही? ओके, सो हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। क्योंकि पूतना ने भगवान ने पूतना का दूध पिया इसलिए वो पवित्र हो गए, और उसने एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रवेश किया।
तो हम आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 61। तो हम लोग आखिरी क्वेश्चंस में आ चुके हैं। व्हाट आर द फीचर्स, भगवान के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, मतलब कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं। ही हैज नो इनसाइड आउटसाइड, उनके अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, अंदर और बाहर में। उनको इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। तीसरा ऑप्शन, वो कभी भी अपने आप को भक्तों के प्रति समर्पित नहीं करते, समर्पण नहीं करते। और वो असीमित है और सब जगह व्याप्त। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? उनका अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं, इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, वो कभी भक्तों के समक्ष समर्पण नहीं करते, और वो सर्वव्यापी हैं। ओके, तो 3 ऑप्शन करेक्ट थे इसमें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने आप को भक्तों के सामने समर्पित कर देते हैं। तो प्रतीक बतेजा अभी 58,000 पे हैं, 1500 की बढ़त है। इसमें से जो सही है, ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है आपको देवकी माता के बारे में। सेलेक्ट ट्रू, अच्छा, जो सही बात है। अपने पूर्व जन्म में उनका नाम कृष्णी और अदिति था, पिछले 2 पूर्व जन्म में। वो महाराज उग्रसेन की पुत्री हैं, वसुदेव जी की पत्नी हैं, और 8वें गर्भ में, जो उनका 8वां गर्भ हुआ था, उसमें ऐसा समझा गया था कि वो 8वां गर्भ गिर गया है, अर्थात मृत्यु हो गई है बच्चे की, 8वें गर्भ के बच्चे की। तो इन चारों में से कौन सी बातें सही हैं माता देवकी के बारे में? ओके, so 2 ऑप्शन सही थे। और हमारा रैंकिंग ऑर्डर वही है, बढ़त भी उतनी ही है लगभग। तो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। किसकी पत्नियों को उनके पति से अधिक ग्लोरीफाई किया गया, मतलब उनका गुणगान किया गया है? पत्नियों को पतियों से अधिक गुणगान किया गया है। जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नियों को केशी, केशी नाम के असुर की पत्नी को, कालिया की पत्नियों को, सुदामा की पत्नी को, इनकी पत्नियों को उनके पतियों से अधिक माना गया, अधिक अच्छा माना गया है। 76 आंसर है हमारे पास। पार्टिसिपेंट्स ओके, तो काफी लोगों ने सही बताया। ब्राह्मणों की पत्नियों को और कालिया की पत्नियों को, कालिया की पत्नियों को हम नाग पत्नी भी बोलते हैं, जिन्होंने जब कालिया के ऊपर भगवान डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और कालिया एकदम बेहोश होने वाला था, तो उनकी पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना की थी, उनका गुणगान किया था। तो कालिया की पत्नी, हालांकि वो कालिया की पत्नी थी, पर वो भगवान की भक्त भी थी, इसलिए उनको अपने पति से ज्यादा उच्च समझा गया है। तो प्रतीक ने सबसे पहले 60,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, और हम आखिरी के कुछ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 64 नंबर क्वेश्चन,
भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता ने बांध लिया, ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा संभव हुआ क्योंकि यशोदा माता भगवान को प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ऊब गए थे दौड़ते दौड़ते, और रोहिणी, क्योंकि रोहिणी माता ने यशोदा माता की मदद की। और चौथा ऑप्शन है अंत में यशोदा माता ने बहुत सारी रस्सियां इकट्ठा करके भगवान को बांध लिया। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यशोदा माता भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान दौड़ते दौड़ते थक गए थे, ऊब गए थे, रोहिणी माता ने उनकी मदद की, और चौथा है यशोदा माता ने काफी रस्सियां इकट्ठी कर ली थी। ओके, तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। इट वाज ऑब्वियस। So we move on to question number 65. वैश्य की प्रॉपर ड्यूटी क्या है? वैश्य का प्रॉपर कर्तव्य क्या है? वैश्य कम्युनिटी का जो 4 वर्ण होते हैं, सिटीजन्स यानी नागरिकों की रक्षा करना, और एग्रीकल्चर खेती करना, व्यापार करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा है शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरा है एग्रीकल्चर खेती और व्यापार, और पहला है नागरिकों की रक्षा करना। तो वैश्य कम्युनिटी का क्या है मुख्य कर्तव्य? तो ये आसान सवाल था, काफी लोगों ने सही जवाब दिया। और प्रतीक भतेजा, अभी भी लगभग 1200-1300 की बढ़त है। भगवान विष्णु के दिव्य गुण कौन कौन से हैं? ब्लिस, हमेशा आनंद में रहते हैं, और दूसरा है ये सभी ऑप्शन, तीसरा है वो ज्ञान में रहते हैं, ज्ञानमय हैं, और चौथा है वो शाश्वत हैं, या कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती, शाश्वत हैं, या ये तीनों ही ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, so we move on to next question number 67, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं वो कैसी हैं? क्या क्या है? फार्मिंग यानी खेती, ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ खेलना, शंकर भगवान की पूजा करना, और चौथा है शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? भगवान खेती करते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, शंकर भगवान की पूजा करते थे, या वेदों का अध्ययन करते थे? ओके,
तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। यस, तो अब हम अपने यज्ञ की पूर्ण आहुति देने के स्टेज पे आ गए हैं। तो ये भी एक यज्ञ है। आप लोग सभी इस क्विज में भाग लिए हैं। 2 घंटे तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से, उत्साह से, भगवान की प्रसन्नता के लिए इस क्विज में भाग लिया है। सो अब इसका फाइनल आहुति देने का समय आ गया। क्वेश्चन नंबर 68। माउंट, जो पर्वत है वो हेवी रेनफॉल यानी भारी बारिश को सह लेते हैं, और भक्त ब्रेकिंग आफ्टर बैरियर्स। तो इसमें तुलना बताई गई कि तुलना किससे है। जैसे जो भक्त हैं उनकी तुलना की गई है पर्वतों से, जो हेवी रेनफॉल को सह सकते हैं, भारी बारिश को। तो भारी बारिश को रोकने के लिए उनकी तुलना की किससे की गई है? हरे कृष्णा मूवमेंट से, भौतिक संसार से छुटकारा पाने से, और ये अथीस्टिक नास्तिकवाद से मुक्ति पाने से, या मायावाद फिलॉसफी। तो 47 हरे कृष्णा मूवमेंट। काफी लोगों ने आंसर दिया, पर सही उत्तर है अथीस्टिक प्रोपेगेंडा। टॉरेंशियल रेन्स ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ ए फील्ड। तो कई लोगों ने यहाँ पे ये उत्तर दिया, पर यहाँ तुलना किससे की गई है? टॉरेंशियल रेन ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ ए फील्ड, यानी कि जो खेत में हम लोग मेड़ बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, उसको कौन चीज तोड़ देती है, उसकी तुलना की गई है अथीस्टिक प्रोपेगेंडा, यानी कि नास्तिकवाद। यानी जब लोग नास्तिक हो जाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो इसी प्रकार से होता है जैसे कि खेत की आप जो पानी की बांधने वाली मेड़ है उसको तोड़ दें और सारा पानी आपके खेत में घुस जाए और सारी फसल आपकी खराब हो जाए। तो उसी तरह से ये नास्तिकवाद का प्रभाव होता है कि जो भी हमारे अच्छे गुण होते हैं सब इस नास्तिकवाद के कारण खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो नाउ वी कम टू द स्टेज, विल सी कौन थर्ड आया, कौन सेकंड और कौन फर्स्ट। तो जो भी रैंकिंग है, बट ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन दिस यज्ञ, so all of you have pleased Lord Krishna very much, so certainly you are rewarded by the Lord. Okay, so तीसरे नंबर पे लव त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे लक्ष्मी शुभा, और पहले नंबर पे ऑब्वियस है, काफी समय से टॉप पे चल रहे हैं, प्रतीक भतेजा। ओके, एंड देन कुश त्रिपाठी एंड सिंधु बिलापति, वो 4th और 5th पोजीशन पे थे। तो congratulations to all of you। तो बहुत ही उत्साह से आपने पार्ट लिया। तो नाउ Vedant Sutra Prabhu is here. Prabhuji, are you here? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yes, please. So you can say some words. Thank you everybody for participating, and I understand many of you could not do well because of internet issues. I am receiving so many messages from so many of you that you are having problem with the internet. We understand that. So the purpose of the quiz was to help you come closer to Krishna. And tomorrow, as you know, is Janmashtami. It's the best day of the year. So I hope you all will have very nice celebrations tomorrow. The purpose of the quiz was to bring you closer to Krishna by remembering Krishna, by memorizing Krishna book. And all of you have participated very enthusiastically, for which we are all very, very grateful to you. And this was an international competition. We have participants from almost so many countries around the world, mostly from India, but also from US, UK, Australia, and
So it was a very nice platform. We all came together and remembered Krishna and glorified Krishna. So, so with that, I would like to thank you so much for your participations. Tomorrow we'll have our program, online program, where we'll also be announcing the final winners and their prizes, and the prizes will be given out to you via post. So see you all tomorrow in the final program. Hare Krishna. So, Prajaraj Prabhu, you can, or maybe we can end with one Hare Krishna Mahamantra. Okay. So we can once chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So all of you all together participated, came together. So this is our real gift, participating together, because things will remain and sometimes after some time they will vanish. But when all of you come together and glorify Lord Krishna, this will remain eternally with you. This act will remain eternally with you. Okay. So we thank Vedant Sutra Crew also for being here for so long time, 2 hours here, and encouraging us. So we'll end here. Hare Krishna to all of you. Thank you very much. Hari Bol.